افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ناقابل برداشت ہے۔ فیلڈ مارشل کا دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے راولپنڈی میں اہل تشیع علماء کرام کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں قومی سلامتی اور معاشرتی ہم آہنگی میں علماء کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا مذہبی جذبات کو تشدد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ گمراہ کن معلومات، فرقہ وارانہ بیانیے اور بیرونی سازشوں کا مقابلہ ضروری ہے۔ علماء کا امن و استحکام کے لیے مکمل حمایت کا اظہار۔ مذہب کے نام پر تشدد کی مذمت۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $112 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $97 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس میں 2779 پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 1,51,513 کی سطح پر ٹریڈ۔ کراچی میں بادلوں کا راج، ایک بار پھر بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گلشن اقبال ایف بی ایریا، شاہراہ پاکستان، یونیورسٹی روڈ اور دیگر علاقوں میں بارش جاری۔ کراچی میں 12 سے 24 گھنٹے تک بارش جاری رہے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے ساتھ حیدرآباد میں بھی وقفے وقفے سے بارش متوقع۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں بھی بادل برسیں گے۔ ایران کے وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب اسرائیلی حملے میں شہید۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تصدیق کر دی۔ ایرانی رہنماؤں کی شہادت پر قوم سے تعزیت کا اظہار۔ اسماعیل خطیب سمیت دیگر ساتھیوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایکس پر بیان میں کہا بزدل دشمن ہمارے ارادوں اور عزم کو کمزور نہیں کر سکتا۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں اسماعیل خطیب کی شہادت کی خبر سامنے آئی تھی۔ ایران نے قطر پر دوبارہ حملہ کیا تو کشیدگی بڑھے گی، امریکی صدر نے متنبع کر دیا۔ ایران کے خلیجی ممالک میں گیس اور تیل تنصیبات پر حملے بلا جواز اور غیر منصفانہ قرار دے دیے۔ کہا کہ امریکہ ایران پر ایسی طاقت کے استعمال کرے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اسرائیل دوبارہ پارس گیس فیلڈ پر حملہ نہیں کرے گا۔ کراچی میں بارش کے دوران مختلف حادثات، جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ چھت اور دیواریں گرنے سے 60 افراد زخمی۔ بلدیہ مواج کھوٹ کے قریب دیوار گرنے سے 11 افراد جاں بحق ہوئے۔ نشے کے عادی افراد بارش کے باعث عمارت میں جمع ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مواج کھوٹ واقعے کا نوٹس۔ شرجیل میمن کا واقعے پر افسوس کا اظہار۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی مجید کالونی لانڈھی آمد۔ بارش کے باعث مکان کی دیوار گرنے سے جاں بحق میاں بیوی کی فیملی سے تعزیت۔ گورنر نے حادثے میں زخمی خواتین اور بچوں کی عیادت اور مالی معاونت کی۔ تدفین میت کو آبائی علاقے منتقل کرنے اور دیگر اخراجات اپنی جانب سے ادا کرنے کا اعلان کیا۔ ایران نے جنگ کا نیا مرحلہ شروع کر دیا۔ ایرانی توانائی تنصیبات پارس گیس فیلڈ پر حملے کا بدلہ۔ ایران کے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر پر حملے۔ قطر کی راس الفان صنعتی شہر پر حملہ۔ دنیا کی سب سے LNG ایکسپورٹ تنصیب میں آگ لگ گئی۔ ریاض پر بیلسٹک میزائل حملے، 4 میزائلوں کو فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ ابوظہبی کی ہیشان گیس تنصیبات اور باب فیلڈ پر میزائل داغے۔ پاسداران انقلاب کہتے ہیں کہ ہمیں توانائی تنصیبات پر حملے کے لیے مجبور کیا گیا۔ پڑوسی ممالک کی توانائی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اسرائیل کا ایران کی پارس گیس فیلڈ پر حملہ، 25,000 ملین مکعب فٹ سے زائد ایرانی گیس کی پیداوار معطل۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ برینٹ کروڈ کی قیمت بڑھ کر $108.66 فی بیرل تک جا پہنچی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ بھی $98.65 فی بیرل ہو گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی ساؤتھ پارس فیلڈ ایران اور قطر کی مشترکہ ملکیت ہے۔ ایران کا اسرائیل پر حملے میں پہلے کبھی نہ استعمال ہونے والے ہتھیاروں کا استعمال۔ تل ابیب کے 8 علاقوں میں تباہی پھیلی، کئی علاقوں کی بجلی منقطع۔ ٹرین سروس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ بن گوریان ایئرپورٹ پر
रीफ्यूलिंग तैयारों बेनिशाना 3 तैयारे तबाह। ईरानी फौज का जंग के आगाज से अब तक 600 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान की तवानाई तंसीबात पर मजीद हमले ना किए जाएं। अमरीकी अखबार का दावा। कहा, ट्रंप के मुताबिक तेल तंसीबात पर हमलों से ईरान को पैगाम पहुंच चुका है। ईरान ने आपना हरमुज़ में इश्तियाल अंगेजी जारी रखी तो मजीद हमले किए जा सकते हैं। ट्रंप को साउथ पारस गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। ऑपरेशन गजब लिल हक में 707 दहशतगर्द हलाक, 938 जख्मी हुए। दहशतगर्दों की 255 पोस्टें तबाह। पाकिस्तान का 44 पोस्टों पर कब्जा। अफगानिस्तान भर में 81 दहशतगर्द ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों के दौरान 237 टैंक, 72 बंद गाड़ियाँ और तोपें भी तबाह की गईं। काबुल, नंगरहार और कंधार में दहशतगर्दों के कैंप, लॉजिस्टिक बेसिस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का आर्जी तौर पर ऑपरेशन गजब लिल हक रोकने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सऊदी अरब, तुर्की और कतर की दरख्वास्त पर ऑपरेशन रोका गया। 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक जंग बंद रहेगी। किसी भी सरहद पार हमले की सूरत में ऑपरेशन फौरी बहाल कर दिया जाएगा। अली लारेजानी और दीगर शोहदा की नमाज जनाजा अदा। तेहरान का इनकलाब स्क्वायर सोगवारान से भर गया। शुरका ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। फ़ज़ाएं अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारों से गूंजती रहीं। अली लारेजानी को गुज़िश्ता रोज़ शहीद किया गया था। लारेजानी सिक्योरिटी पॉलिसी के मामार थे। अली लारेजानी शहीद खामनाई के करीबी मुशीर थे। ईरान का अली लारेजानी की शहादत का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का शहीद को खिराज अकीदत। कहा, अली लारेजानी ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए कोशिशें की। उनकी शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, बदला लेंगे। खातिमुल नबिया हेडक्वार्टर्स के सरबराह जनरल अली का कहना है कि ट्रंप को सरप्राइज मिलेगा। हमारा रद्द-ए-अमल गैर मामूली होगा। अली लारेजानी की शहादत के बाद ईरान की इसराइल पर मज़ालों की बारिश। तेल अवीव लर्ज़ उठा। कई इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों में 100 से ज़ायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। 200 इसराइली हलाक और जख्मी हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी। ईरान के बुशहर एटमी पावर प्लांट पर हमला। ईरानी हुकाम का कहना है कि गोला प्लांट के हाथे में गिरा। एटमी प्लांट और अमले के अरकान महफूज रहे। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। IAEA का कहना है कि एटमी तंसीबात पर हमले न किए जाएं। इसराइल के लबनान में वहशियाना हमले। मजीद 12 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली फौज की बैरूत में बमबारी से 15 मंजिला रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई। मशहूरा इलाके में भी जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। लबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 912 अफराद शहीद, 2100 से ज़ायद जख्मी हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कुवैत और ओमान के सुल्तान से राबता। वज़ीर आज़म की कुवैत पर हमलों की शदीद मज़म्मत। कीमती जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करने पर जोर। कुवैत के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का इजहार। ओमान के सुल्तान से अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का तामीरी बातचीत को बरकरार रखने पर जोर। बलूचिस्तान में फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। CBYC का लापता अफराद का बयानिया भी बेनकाब हो गया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, बलूचिस्तान को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। बलूचियत के नाम पर बलूचों को गुमराह किया जा रहा है। बलूचिस्तान की अवाम अब दहशतगर्दी को कबूल नहीं करते। दहशतगर्द बलूच खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। खुदकुश बमबार बनने के लिए जहन साजी की गई। कमांडर इब्राहिम की तंजीमी बातों से मुतासिर होकर खुदकुश मिशन के लिए तैयार हुई।
खुजदार की रिहायशी 19 साला लाइबा ने मीडिया के सामने कलई खोल दी। कहा, मुझे मजीद लड़कियों को इस काम के लिए तैयार करने का टास्क दिया गया। मुलजिमा को मजीद तरबियत के लिए BYC रहनुमा डॉक्टर सबिया से मिलना था। लाइबा की तमाम खवातीन से गलत सरगर्मियों का हिस्सा ना बनने की अपील। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। आज 30वां रोजा, ईद कल होगी। मुत्तहदा अरब अमारात में भी ईद कल मनाई जाएगी। पाकिस्तान में ईद कल होगी या परसों। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। स्पार्को के मुताबिक आज शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम है। ईद उल फितर हफ्ता 21 मार्च को होगी। ईद पर 5 छुट्टियां होंगी। हुकूमत पंजाब का बड़ा ऐलान। इतवार और 23 मार्च की छुट्टी मिलाकर 5 छुट्टियां होंगी। आज से ईद की छुट्टियां शुरू होंगी। नोटिफिकेशन जारी। ईद की खुशियां अपनों के संग। परदेसियों की वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। लाहौर खाली होने लगा। मुतादिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। परदेसियों से मुंह मांगे किराए वसूल करने की भी शिकायत। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग में तेजी आ गई। मुल्क भर के बाजार भर गए। बच्चे, बड़े और खवातीन सभी खरीदारी में मसरूफ। खवातीन को कपड़ों और ज्वेलरी के बाद मनपसंद जूतों की तलाश है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रमजान रिलीफ पैकेज का जायजा इजलास। 89% मुस्तहकीन को अदायगियां मुकम्मल। मजमूई तौर पर 19,55,620 डिजिटल ट्रांजेक्शन्स मुकम्मल की गई। वज़ीर आज़म का रकूम की शफाफ तरीके से फराहमी पर मुतल्लिका इदारों को खिराज तहसीन। BISP की तमाम अदायगियां सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट से करने की हिदायत। मुल्क में बादलों का मटर गश्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश। ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। मुल्तान, मियावाली, रहीम यार खान, घोटकी, उबाड़ो, मीरपुर माथेलो और ढेरकी में बारिश। चमन, बारखान, डेरा बुगटी, सोहबतपुर में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने ईद के दौरान भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब फौजी कार्रवाई कर सकता है। सऊदी अरब की ईरान को वार्निंग। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की नाकाबिल कबूल करार दिया। सऊदी वजीर खारजा ने कहा, ईरान को अपने गलत अंदाजों पर नजरसानी करनी चाहिए। ईरान को हमलों से कोई फायदा नहीं होगा। मशरिक वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा का सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में इजलास। पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शिरकत की। पाकिस्तान का तमाम ममालिक पर हमलों के खात्मे पर जोर।